प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान के ख़जाने में रह गए हैं जनाब 10 अरब डॉलर और कोशिश की जा रही है कहीं से भीख मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि सिस्टम को चलाया जाए। दूसरी तरफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर दिया है महंगाई के खिलाफ। राना सनाउल्लाह जो बड़ी बड़के लगाता था, उसने भी ये बात मान ली है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। IMF कर्जा देने के लिए पता नहीं कौन सी शर्तें रख रहा है कि जो आज तक पूरी नहीं हो रही। मगर कब तक वो कर्जा देगा, कब तक ये सब कुछ चलेगा? इसके साथ यकूब साहब से ये भी पूछे कि हमारे साथ हैं इस वक्त इटली से, कि जो वजीर खारजा है पाकिस्तान के बिलावल साहब, वो एक बच्चों के साथ तस्वीर बना रहे हैं। 4.5 लाख का जूता पहना हुआ है। जिन बच्चों के साथ वो तस्वीर बना रहे हैं उनके पाँव में जूता भी नहीं है। ऐसी गैर अखलाकी वीडियो भी बिलावल की चल रही है सोशल मीडिया पे। एक तरफ हम कहते हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ हमारे जो हालात है, जिस तरह हमारे ये हुक्मरान पिकनिक मनाते हैं, याशी शराब और शबाब की महफिलें, और ये भी कहते हैं कि ये एक इस्लामी मुल्क है। यकूब साहब, ये क्या हो रहा है? किस तरफ चले गए हम? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। जिस वेले कौमां तबाह होंदी है ना जी, ते उन्हां दे ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 22 ਕਰੋੜ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੈयद ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਮੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੋਏ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵਦਾ ਵੇ, ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਮੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਥ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਮੇ 'ਚ ਗਿਆ 2022 'ਚ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਣਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਮੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਤਰ ਪਲਗੂੜੀ ਪਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਕੇ 2 ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨੇ ਬਲੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਾ ਸੋਣ, ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ, ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੋਣ ਡਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥੁੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਜਰਨਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਅਤਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੂ ਮਰਦਾ, ਸੂਰ ਕਦੇ ਮੋਏ ਨਾ, ਸੂਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦੱਜਦਾ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪੂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਸਾਕਾ ਲਾਕੂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮਾਫ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੱਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ? ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੌਣ ਲਾਉਂਦੀ ਕੌਮ? ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਰਿਓ, ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਚਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਕਮਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਏਡਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ
एडा लायक बंदा, एडा वकील बंदा होके किस चीज की भुख है, वो हिजड़े के मगर खलोंदा है। उन्हें कदे हीरो नहीं बनना, हीरो नहीं बनता। दूजा चाहे उन्हें निसार है, वो सिर्फ इमरान खान का क्लास फैलो है, दोस्त है, अच्छी इज्जत करता है। वो आदे मैं हीरो बना, तू हीरो नहीं है बन सकता, तू लुहारा का 20 साल नौकर भी है, तेरे ते वहां में इतबार नहीं करती। तेरा काम है अगर तू मुल्क की खिदमत करनी चले, इमरान खान नाल लग जा। तू जो सदी अग च बलदा रहेगा ना तू MNA बनना, तू पार्टी से बड़ी दूर की गल है। या वजीर इमरान खान तू कख भी नहीं तू बनना, अपनी आकत ना खराब कर, कोई मुल्क वास्ते कर जा, इमरान खान का साथ दे। एक मुड़ा इकरार हुसैन है, जिसका प्रोग्राम सरेआम ARY ते बड़ा अच्छा मुड़ा है, उन्हें बड़ी मेहनत की है, बड़ी मारा खादी है, कौम पिछे बड़ी कुर्बानियां दी ने, बंदे बड़े पकड़िया उन्हें, उन्हें ज्यादती बड़ी, लेकिन उन्हें इमरान खान से बोल के खिलाफ अपनी आकत खराब कर ली। शायद अफरीदी कर रही है, जवाब हम गुलकार ने कर ली, और वक्त तक ही अपनी जाती चौराहा बनाने वास्ते, और जिन्हों रब ने इज्जत देनी है, कोई नहीं बंदा, जवेद साहब उसकी इज्जत कोई नहीं रोक सकता। इज्जत व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिलो मन तशाओ। और बाजवा और तेन खुदा गल करे, तू मौत मंगे तेन मौत ना दे, तेन कीड़े पैणों बेगैरता, तू कोई काम ही नहीं छड़िया, और तू अपने वास्ते छड़ इस गल, अपने 4 दिन की तेरी उम्र कितनी हो गई, वो 4 दिन की तू गंदगी हरकत वास्ते, ये दुनिया का आराम कट्ठा करने वास्ते अपनी औलाद भी आराम खुआएगा, मगरू वो भी कीड़े पैकड़ मरनगे, तेरे रिश्तेदार भी दे साडू भी, तू ना अदारे नूं बख्शिया, ना तू अपनी उम्र तकी है, ना तू अपना ओहदा तकिया। एक तेरी गंदगी वास्ते लोग जो कोई बेवकूफ लोग ने, मैं तो सिर्फ गाल कढना जनरल नूं, मुंह बोल के आना मेरे को गोली मार दे, मरवा दे, कातल भेज दे मेरे वास्ते, मैं मतलब कुछ भी है। मैं फौज नूं गाल नहीं करता, फौज नूं मैं सलाम करदा, सत सलूट, मैं जानना फौज नूं, मैं राह वाली छावनी ट्रक चलाया 2 साल फौज के मुतहद में। अच्छा ये बताइए कि बिलावल बनेगा चेयरमैन पार्टी का, मरियम को सदर बना दिया गया है नून लीग का, ये अब जो ख्वाजा आसफ है, साद रफीक है, आसन इकबाल है, वो दूसरे तीसरे जितने भी, इनकी कोई औकात नहीं कि इनमें से कोई सदर बन जाता। और ये भी दुआ है करो, या मौला करीम कर्म कर अपने प्यारे सदके, मेरा तो ईमान है, मैं ता मायूस नहीं, मेरा ईमान है जो मर्जी है कर लो, जेड़ा उत्ते बैठे हैं जिन्हें कायनात नूं बनाए है, वो सब तो बड़ा, अदालत भी हो या सुप्रीम कोर्ट भी है, अमेरिका सुपर पावर, मैं नहीं कहता, मेरी जुबान फर्ज है, ओ ये तो सबको पता है, मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से क्यों नहीं किसी को सदर बनाया। ये बन जान ते ओ ते सूर है ना, आदना में शेर सूर भी खांदा, आदना शेर निशान है, इन्होंने नहीं पता सब तो बड़ा बेगैरत फ्राडिया बेईमान जानवर। तुम कदा जानवरों की फिल्म तको ना, जिवेद साहब तकदे हो, आमदी है फिल्म, हर चैनल से आमदी है, रोज ही फिल्म चलती जानवरों की। एक जहाज़ का एक्सीडेंट जो होंगे, एरोप्लेन तबाह होंगे, उन्होंने जानवर मैं बड़ी तकना, मैं फिर खुदा की कुदरत वेखना, बड़े बड़े खतरनाक हादसे होंदे होंदे जहाज बच जाते हैं, और कई जहाज पिछले जहाज तक लैंदियां लैंडिंग करदे वो बिल्कुल रनवे जाके समुद्र के किनारे उत्ते खत्म होता है। वो पायलट की थोड़ी जी गफलत तो उन्हें पिछले टायर है और एयर रनवे तो पीछे लाए ने, वो जहाज गर्क हो गया, टायर टूटे हो गए, बंदे मार के अग लग गई, गड्डियां एयरपोर्ट पर जाके लैंडिंग करते गलती पायलट कर गए। तो मैं देखना भी रब की कुदरत है, कई बार वो आसमान के उत्ते जहाज खराब होते हैं, सही तरीके ਨਾਲ लैंडिंग कर जाते। अच्छा जहाज है ਜਿਹੜਾ करना ਪਿਆ वो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹੋ पे ख्वाजा आसफ, आसन इकबाल, अयाज सादिक, उसलूके वाला साद रफीक चौधरी ਦੀ ਕੁੜੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ जुनेद लतीफ, और इन्हां ते थुक्को, इन्हां दे अगे भी थुक्को, पिछे भी थुक्को, एक बंदे ने इन्हां नाल फिर मरियम ही चंगी है, ठड़के ठड़कदे पूरा हो जांदा ना। ये बुढ़े चम ते झूठे मकार बगैर दरिंदे दरिंदगी नाल परे, गंदगी नाल परे, इन्हां नूं छड्ड दिओ। जे इस कौम की बहाली इन्होंने टास्क दिता गया, जवेद साहब इन्होंने टास्क दिता गया, दले की औलाद नूं, दुल्ले की औलाद जी है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक बाजू ये मुआहदा करके आए, इन्होंने अगले पालिया 20-25 साल, इन्हें मुआहदा किया कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, खुदा इन्होंने खत्म कर दे, मेरा ईमान इन्हें अगर ये रहे ना और 4-5 साल दले ने बड़े तक इस कौम की क्या तो नहीं, ना रोटी नहीं ना लभनी खान नूं, इन्होंने ना बली बालू दरख्तां नूं किकरां दी फलियां ला के खानियां जे, ये हालत हो गई इस कौम की। अच्छा मुर्गी लो, मेरे भतरीजे का उन्होंने फोन आया, यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा, मैं पुत्र है मुर्गी ना पाकिस्तानी खाओगा, मैं राती फिल्म तकी है, इन्होंने मैं दाल लिया, वो 2 किलो देसी घ्यो ले लो, दाल पका के घ्यो पा के खा लो,
ਉਹ ਵਾਲਜ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਲੋ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ। ਦਾਲ ਖਾ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਬਾਜਵੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਆਏ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ? ਇਹਨੇ ਕਿੰਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਸਮਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਂਤ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 20 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਤਲਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਤਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ। ਗੈਰਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੋਟੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਦੀਨ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਆਇਆ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਾ ਲੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਸੀ ਡੱਕਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਚ, ਯਮਨ ਚ, ਇਰਾਕ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਜ਼ੀਦੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਤਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਬਲੀਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਢਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਓ, ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਲਾਏ DGISI ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਹਿਦ ਜਨਰਲ ਨਸੀਰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹ ਤੋਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰਸ਼ੇ ਲੁੱਟੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਜਨਰਲ ਖਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕਬਰ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਬਾਜਵੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ ਆ, और शिव की मां दुआई पाती है बुढ़ी और नहीं, लेकिन कहा जा रहा है सर याकूब साहब, ये पता चला कोई गिरफ्तारियां हुई हैं फौज के अंदर से भी? कोई नहीं हुई, वो इन्हें गिरफ्तारियां की है ना, वो बाजवा कर गया अपने मुखालफ बंदे दी, जेडे बंदे मुहब्बत ना, वो एक बंदा छड़िया इस कर, कोई गिरफ्तारी नहीं, दुआई खुदा दी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जेडे बाजवे के बंदे बनाए ने, एक बंदा आसम नसीर ने गिरफ्तार नहीं किया, जे इन्हें करना होता तो बाजवे ने कोई नसम दिता। अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए ये परवेज लाई और इसका क्या ड्रॉप सीन होगा, ये जो इमरान खान पंजाब असम्बली का क्या एंड आप देख रहे हैं, मुख्तसर जरा बताएं। मैं यही अर्ज करना बस जोर लाई ते नवाज शरीफ ज़रदारी एक टैडी पैसे का फर्क नहीं, उन्हें तकने अकेला पासा पा रहा है। वो किसी पूछया बड़ी काफी साल पहला भाई तू केड़ी पार्टी नाल, उन्होंने आख्या JJONL, उन्हें क्या वो केड़ी पार्टी है, उन्हें कहा जेड़ा जुटे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ये फिर इसका मतलब हमारे मुकद्दर में अवाम के यही जिल्लत और रसवाई इसी तरह ही चलेगी? बिल्कुल जोर लाई प्लस जे ਜਿਹੜਾ परवेज लाई जे नवाज शरीफ ਤੇ शहबाज शरीफ ਦਾ ज़रदारी तू ਤੇ फजल लंडू तू ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਾਕ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਜਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੜੀ ਜੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਫਾਲਤੂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਗਿਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚਾਰੇ ਚਮੂ ਪਾ ਸਕ, ਇਹ ਗੋਲ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ, ਇਹ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਚਮੂ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਰਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ परवेज लाई ਦਾ। ਬਿਲकुल ਇਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾ परवेज लाई ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ठीक है,
जी ये बताइए, ये सियासत में आपको शुरू से दिलचस्पी है सर? मैं बचपन दूंगा, मैं गरीब पिओ का पुत्र है, मजदूर है, तभी मैं पंगे सारी उम्र लंदा है। मैं 35 साल पिंड च, सारा पिंड एक पासे है, मैं कला एक पासे, उन्हें बड़े बड़े बदमाश कातल है, मैंने सारे तुम सुने होने, मजदूर जब ले लिया, वो खलोते पूरे पिंड का जैसा कराया, मैं कले ने मुखालफ होते जसलम तो जैसा कराया। मैं क्या वोट तो लेनी है, उन्होंने ये पता कि पूरा पिंड ही बगैर था, मैं बदमाश है, मैं वोटा देने डरते ने बंदे, मैं जलसा कराया बड़ा बड़ा ਉਹਦਾ। वो बनया नहीं, वो वखरी गल है। मैं बनया क्या तू ज्यादती करने पे मेरे लगते हैं, मैं क्या मैं है यार रब तू डरो, ये कुत्ते बिल्ले बंदे को डरना बदमाश को होए, जिंदगी रब कोल है। जे असल यूनुस अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਨਸਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਕਸਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੋਖੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ। ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਸਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿੰਜ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇੰਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਤ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁੰਦਗੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ ਨੇ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 1400 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸੱਲੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਸਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, 7 ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਮਾ ਲਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੱਭ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੰਗਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਿਆ ਖਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਰਾ 3 ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। जिस टाइम मिले मैंने लैंड ले लो, कोई पीछे था। ठीक है, पहले पर मैं कल दर्शी पर जाना पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह नाज़रीन, एक दफ़ा ये प्रोग्राम किया, फिर मैंने काट दिया क्योंकि यकूब साहब जज्बात में आ गए थे, काफ़ी कुछ कह गए। शुरू से फिर प्रोग्राम किया, फिर
अब आपके सामने ही है। एक रिक्वेस्ट भी की थी कि हाथ हौला रखा करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं प्रोग्राम। आज हमारे के साथ आज के प्रोग्राम में स्वीडन से हमारा साथ दे रहे हैं अब्दुल कयूम साहब, और आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जब से इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ है, यहाँ पे कितना नुकसान हो चुका है, और एक सर्वे के मुताबिक कितने लोग चाहते हैं कि जो इंग्लैंड है वो दोबारा यूरोपियन यूनियन में दाखिल हो जाए। एक स्पेशल प्रोग्राम मैंने इसलिए किया कि जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं उनके इल्म में है कि यहाँ पे महंगाई में इजाफा हो रहा है, यूरोप के मुकाबले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, वो बिल यूरोप में इतने नहीं आ रहे जितने इंग्लैंड में आ रहे हैं। पानी है, बिजली है, गैस है, हर चीज़ यहाँ पे महंगी हुई है। और साथ 2 साल में मेरा ख्याल है कि इतनी हड़ताल शायद पहले ना हुई हो, मेरे इल्म में नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि इतनी जितनी रोज़ाना आप सुनते हैं कि आज रेलवे की हड़ताल है, कभी एयरपोर्टों पे हड़ताल है, कभी एम्बुलेंस की प्रॉब्लम बनी हुई है, फ़ौज आ गई है, फ़ौज संभाल रही है, कभी ट्रक ड्राइवर प्रॉब्लम बन गए थे, उस वक्त भी फ़ौज को कॉल करनी पड़ी। ये हालात इंग्लैंड में पिछले 2 साल से बने हुए हैं। और एक और सर्वे के मुताबिक तकरीबन जो अभी ताज़ा सर्वे किया गया है कि इंग्लैंड के 60% लोग तकरीबन चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन में वापस चले जाएं और इकट्ठे मिलके चले। इंग्लैंड एक सुपर पावर है, लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुए काफ़ी मसाइल का सामना है इंग्लैंड को। यहाँ पे 12 दफ़ा वज़ीर आज़म बदलते रहे, आपके इल्म में है कि मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी तब्दीली आती नज़र आ रही है कि हमेशा कुछ 4 माह 3 माह, कई दफ़ा 1.5 माह बाद भी नया वज़ीर आज़म आ जाता है। जो असल मसाइल है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म बदलने से मसाइल हल नहीं हो रहे। अब जो यूरोप से लोग आते थे वो आने बंद हो गए। यहाँ पे लेबर की कमी है, लोग मिलते नहीं है, जो मिलते हैं अगर आपने कोई काम करवाना घर का तो वो बड़े महंगे हैं और उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, मगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हालात जो है वो ख़राब होते नज़र आ रहे। लोग जो है वो परेशान हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे कवानीन में सख्ती की जा रही है दिन ब दिन। और जो टैक्सी ड्राइवर यहाँ उबर वगैरह ले या दूसरे तीसरे हैं, उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई तो जब भी वो पीसीओ का लाइसेंस बनने के लिए देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी का ख़त्म हो गया न्यू कराने के लिए भेजा है, तो वहाँ भी इस चीज़ का ख्याल ही रखा जाता कि इन लोगों के घर का सिस्टम कैसे चलेगा। पिछले दिनों चंद लोगों से बातचीत हुई, जो दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं, वो काम में शायद उनको आदत हो गई है कि हर वक्त कोरोना एक जेन में बैठ गया और सारे उसी हिसाब से काम करते। सुस्त रफ्तारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तेज़ी नहीं है। जिस तरह यूरोप में आप देखते हैं कि तेज़ी से काम होते हैं, जर्मनी वगैरह में वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और भी लोगों को जो मसाइल है उसमें ये भी है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं यूरोप से आए हुए हैं, वो भी यहाँ जल्दी सेट नहीं हो रहे। मकानों के किराए इतने बढ़ते जा रहे हैं, जो 1500 पाउंड था वो 2000 पे चला गया। ज़ाहिर है जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इसमें इजाफा किया गया। अब ये गलतियाँ जो हुई, जब ये यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था इसके बारे में कि हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएं, बहुत मामूली तादाद की वजह से जो लोगों ने फैसला दिया था वो भी बताया जा रहा है कि उन लोगों के पास तजर्बा नहीं था, उनको पता नहीं था। और ज़्यादा जो बाहर के लोग थे, लंदन वगैरह में तो ऐसा नहीं मसला बना, जो बाहर थे लोग उन्होंने ये फैसला दिया था कि हम यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाए। पौंड है वो आपके सामने ही है
इसी तरह जो सामान आता था यूरोप से वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना, जिसकी वजह से महंगाई हुई। अब आप वो पंजाबी में कहते हैं बैठियां नु छाड़ के उड़दियां नु फड़न लग पो, हम चाइना से मंगवाएंगे, हम अमेरिका से मंगवाएंगे, हम उधर से मंगवाएंगे, यूरोप साल लग रहा है, ट्रक आने जाने में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बेशुमार ट्रक ड्राइवर जो है वो इंग्लैंड आना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि बॉर्डर पे हमें काफ़ी देर रोक लेते हैं, बड़ा टाइम ज़ाया होता है, तो कोई आने के लिए वहाँ से इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। ये सब कुछ होने के बावजूद जो यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे, जो गवर्नमेंट में लोग हैं, कि इंग्लैंड अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, मगर मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल काम है। अब क्या इंग्लैंड जो है वो वापस यूरोपियन यूनियन में जाएगा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इन्हें कहा तो था कि वापस आ जाए, मगर हमारी शराइत पे आप आएंगे, और शायद अब ये झिझक भी रही है कि दोबारा यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे, तो अना का भी मसला है और भी मसाइल है। मगर क्या इसी चक्कर में इंग्लैंड में लोग जो है वो दिन ब दिन जो है परेशान होते नज़र आ रहे हैं, और परेशानी की वजह सबसे जो बड़ी है वो महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से ये जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ा रहे। हड़ताल का असल मकसद यही है। कभी आप देखें कि बसों की हड़ताल है, कभी कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया। पिछले दिनों में एयरपोर्ट पे आया था, टर्मिनल 5 पे, वहाँ पे भी हड़ताल चल रही थी। आधा घंटा हमें प्लेन में बैठना पड़ा। बताया गया कि जनाब यहाँ पे अमला नहीं है और आप प्लेन में वेट करें। फिर मेरे पास तो यूरोपियन पासपोर्ट था, मैं तो टच करके बाहर आ गया, मगर मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी दुनिया जो भी इंतज़ार कर रही थी, और वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रहे थे। ये सब कुछ होने के बावजूद अब क्या इंग्लैंड ये फैसला करेगा कि वो यूरोपीय यूनियन में वापस चला जाए? मेरा ख्याल है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ये मेरी राय है, बाकी मैं तो मशवरे दे सकता हूँ, क्योंकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर से शायद या नवंबर से ऑनलाइन आपको बाकायदा तौर पर इंग्लैंड का वीज़ा लेना पड़ेगा। इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें यूरोप का वीज़ा लेना पड़ेगा। कुछ 7-8 पाउंड या डॉलर उसकी फ़ीस होगी, 3 साल के लिए होगा। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं यूरोपियन, उन्हें भी अपना रेजिडेंट परमिट वो प्रिंट करके साथ रखना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन आप मिला हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी एयरपोर्ट पे सफ़र करेंगे यूके के लिए, तो वो आपसे पूछेंगे जनाब आप जिस तरह अमेरिका कनाडा में आप जाते हैं तो वो बाकायदा तौर पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए, इसी तरह ये सिस्टम चलेगा। अब देखते हैं लोग जो है दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं, और इनकी परेशानी में क्या इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा फैसला करेगी कि आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन से बात की जाए। और जो मैं एक और चीज़ बता दूं, जिनका 100 पाउंड बिल आता था उनका 400 पाउंड बिल आना शुरू हो गया है, ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस का। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए, मेडिसिन महंगी हो गई है, हर चीज़ यहाँ पे महंगी होती जा रही है, और अंदरूनी तौर पे काफ़ी मुश्किलात का सामना इस वक्त। कितना खर्चा पड़ता है जब हड़ताल होती है, कितना नुकसान होता है, इसका तो मेरा ख्याल है अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। मगर उसके साथ जो लोग परेशान होते हैं, जब ये अंडरग्राउंड वगैरह की हड़ताल होती है, लोगों को टैक्सी मिनी कैब इस्तेमाल करनी पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी खर्चा मर्चा हो जाता है। मगर अभी तक गवर्नमेंट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। मेरा बड़ा मशवरा ये है कि दोबारा रेफरेंडम कराना चाहिए यहाँ पे, और चेक करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर गलती की है तो उसको अब मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी तरह तो हल करना चाहिए। हो सकता है यूरोपियन यूनियन कोई और प्रॉब्लम ना दे जब ये इंग्लैंड वाले दोबारा यूरोपियन यूनियन में जाएं कि जनाब आप यूरो में शामिल हो जाएं, वहाँ पे भी इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और भी वो क्या शराइत रखते हैं ये तो इन लोगों को पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूरोप वाले नरमी का मुजाहरा करेंगे। वो ऐसे मुल्कों को साथ अब मिला रहे हैं, ईस्ट यूरोप के जो गरीब ममालिक हैं। तो इंग्लैंड तो फिर आपके इल्म में है कि एक सुपर पावर है, और इसके साथ मेरा ख्याल दोबारा उनकी डील हो भी जाएगी, और इतना बड़ा मसला नहीं है।
तो देर नहीं करनी चाहिए, ये ना हो कि 100 जूते भी 100 प्यादला साहब हो जाए और फिर वही हो कि अवाम जो है वो सड़कों पे निकले। कई दफ़ा ये हुआ है कि महंगाई के खिलाफ जल्द से जुलूस हुए, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक उसका कोई असर नहीं हो रहा। ये मैंने आपको मुख्तसर बताया। आप अपनी राय का इज़हार हमारे कमेंट्स में लिखें और लाइक का बटन दबाएं ताकि पता चले कितने लोग हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, और सब्सक्राइब दोबारा कर ले। कई लोगों को हमारे प्रोग्राम नहीं मिल रहे, बेहतर है कि दोबारा एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, चेक करें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से देंगे हमारा साथ। अच्छा जी, बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम आ रहे हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। काफ़ी अरसा से नवाज शरीफ को ये बताया जाता है कि ये लोगों को कत्ल करवाता है। यहाँ पे भी अरशद शरीफ के बारे में भी आपके इल्म में है। फिर इमरान खान हमला जो हुआ है वो भी क्या ड्रामा चल रहा है। अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे और पूछेंगे कि क्या वजह आज तक ये लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, इनको कानून ने कभी कोई सजा नहीं दी। मॉडल टाउन कत्ल हों, ये तो सामने है, जो छुप छुपाई के होते हैं वो भी बताए जा रहे काफ़ी कत्ल हुए हैं। जी सर, ये क्या आप देख रहे हैं, कहाँ है हमारा कानून, कहाँ हमारे अदारे, या उनको भी ये डरा देते हैं कि अगर आपने कुछ किया तो आपका भी वही हाल करेंगे जो अरशद शरीफ का किया, जिस तरह इमरान खान पे हमला किया। इस तरह ब्लैकमेल तो नहीं चल रहा अंदर अंदर? बिल्कुल मुबारक साहब, बदबख्ती पाकिस्तान, हमारे प्रोग्रामों में हमने बहुत दफा दोहराया कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये अल्फाज मैंने दोहराए, पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान 75 साल से नहीं चल रहा। आज बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान पहले दिन से नहीं चल रहा। आप देखें कि एक ऐसा आदमी जिसको 3 दफा वजीर आजम बनाया गया इस मुल्क का, और तीनों दफा करप्शन पे उसको निकाला गया, खरबों रुपए उसने हजम किए। और आपको अगर याद है तो प्रेसिडेंट जो था पहला सिविलियन इसहाक खान, उसने इसको कहा था कि ये सड़कें क्यों बनवाते थे ये दोनों भाई, क्योंकि उसमें कमीशन बहुत मिलता है। अगर 10 अरब की एक सड़क है तो ये उनको 15 का कहते थे कि बना के दो, 10 5 हमारी जेब में डालना। एक ऐसा वजीर आजम जो 3 साल इस मुल्क के ऊपर चढ़ा रहा, खरगों में खा गया, और अंदर अंदर बहुत बड़ा कातिल था वो। उसकी मिसालें सॉरी 3 दफा सब। जी आपने 3 साल बोल दिया, 3 दफा वजीर आजम रहा। हाँ जी, 3 दफा। तो देखें ये बंदा जो है, इसने कितने कत्ल करवाए। एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बीवी आज भी वो ये एक ही बात दोहरा रही है कि इसने मेरे खामद को जहर दिया था, जो 2 महीने बाद वो उसको हार्ट अटैक हुआ। लाहौर में जिस FIA के अफसर ने, डायरेक्टर ने इनकी इंक्वायरी की थी, उसको हार्ट अटैक हो गया। इसके बाद वो जज जिसने इसको सजा दी थी, उसको घर बुला के खाना खिलाया, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो मकसूद चपड़ासी जो इनके सारे इधर उधर उनके उसके नाम पे ट्रांसफर हो रहे थे, वो तो चपड़ासी था, उसको हार्ट अटैक हो गया दुबई में, वो मर गया। ये बंदे जो हैं, ये बंदे कितने खतरनाक थे पाकिस्तान के लिए। इन्होंने क्या क्या साजिशें की पाकिस्तान के अंदर, और आपके अदारे 100% नहीं, मुबारक साहब 200% फेल हुए हैं। 200% जजेस फेल हुए हैं, 200% आपके इंक्वायरी करने वाले लोग फेल हुए हैं, और 200% आपकी पुलिस फेल हुई है, और बाकी अदारे तमाशा देख रहे हैं। तो ये एक बात साफ ज़ाहिर हो गई है कि पाकिस्तान ना चल रहा था, ना अभी चलेगा। सर ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, जिस तरह मेरा सवाल था कि जो लोग इंक्वायरी करते हैं उनको भी डर होता है कि ये तो बहुत बड़ी माफिया है, हमें भी मार डालेगी, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना वहां पे। नहीं, लेकिन देखें ना मुबारक साहब, अदारे हैं ना, आपका मुल्क जो होता है वो अदारे पिलर्स होते हैं, जिसमें आप जजेस हैं, आपके इंक्वायरी करने वाले हैं, आपकी पुलिस है, आपके FIA है, आपके पता नहीं क्या क्या अदारे। उनका काम ही ये होता है कि वो दयानतदारी से पाकिस्तान की खातिर लोगों को इंसाफ देने के लिए दयानतदारी से FIA ने बड़े बड़े काम किए, ये मानना पड़ेगा। FIA ने बड़े बड़े लोगों को उनकी जमीन से उठा के बाहर निकाला, लेकिन क्या हुआ, उनका वो डायरेक्टर जो लाहौर में बैठा था उसको उन्होंने कत्ल करवा दिया। आप देखें, इमरान जैसा बंदा जो कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर सियासी लीडर है और सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कत्ल करने की, अलग कत्ल करने की साजिश की गई। गोलियां 3 बंदों ने मारी, वो अल्लाह ने उसको बचा लिया, लेकिन एक्चुअली वो उसको कत्ल
अपनी तरफ से उन्होंने कत्ल कर दिया था, क्योंकि गोलियां मारी, 14-15 गोलियां मारी हैं। अच्छा, आप देखें कि उसकी पार्टी को आज तक हुकूमत नहीं आने में दे रहे, उसकी पार्टी को उतरवाया गया, हुकूमत खत्म की गई, और तमाम पाकिस्तान के करप्ट, बेईमान, झूठे, लानती लोग, उनको जबरदस्ती हुकूमत दे दी गई। और आज पाकिस्तान, आप यकीन करें मुबारक साहब, आपका हर इंटेलिजेंट आदमी टीवी के ऊपर, अखबारों में, सोशल मीडिया में एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया, क्या वो खत्म ही होने वाला है, उसके पास कुछ नहीं है। आज आपके वजीर दफा ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है कि हम पेट्रोल जो है वो रेलवे को दें या बाकी लोगों को दें, तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो शर्मिंदगी की है, जो एक मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी बना है, उसको इन्होंने सऊदीया में भेजा है, दुबई में भेजा है, जाके पैसे मांगो, जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात, पाकिस्तान एक जो 22 करोड़ का मुल्क है, जिसके अंदर $ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, और उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोगों से पैसे मांग रहा है। अच्छा सर, एक बड़ी अहम बात आज और है, वही है कि काफी दिनों से सुजुकी कार जहां पे बनती थी वो कंपनी बंद है, उनके पास डॉलर नहीं है, सामान फंसा हुआ है वहां कराची बंदरगाह में, और उन्होंने गवर्नमेंट को कई दफा तवज्जो दिलाई। आपने भी अभी बताया कि वजीर दफा ने कहा हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तेल नहीं, और ऊपर से ये कह रहे कि जो लोग बता रहे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है उनके ऊपर मुकदमात बना दो। वो तो देखो ना, ये गुंडे है ना, ये तो गुंडे हैं जनाब, ये तो ये आपके कोई हमदर्द थोड़े ही है पाकिस्तान के या पाकिस्तानी लोगों के, ये तो गुंडे थे। गुंडे क्या करेगा? गुंडे आप सच्ची बात करेंगे आपको वो थोड़ा मार देगा, वो गुंडा है। आप उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे तब भी आपको कत्ल कर देगा, क्योंकि वो गुंडा है। तो ये तो गुंडे हैं। इन गुंडों को कौन लाया था? इन गुंडों को कौन उतारेगा? इन गुंडों के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम क्यों नहीं निकलती? 22 करोड़ है पाकिस्तान के लोग, सड़कों पे रो पीट रहे हैं, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, आटे की बोरी नहीं हमारे पास। ये सब कुछ सड़कों के ऊपर हो रहा है, लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हम भूखे मर जाएंगे। और आपकी रेलवे का मिनिस्टर और उसके जो अदारे, उन्होंने बोला कि हमारे पास 2-3 दिन का डीजल रह गया, रेलवे जो है वो क्या हो जाएगा, रेलवे जो है वो दिवालिया हो जाएगी। आप अंदाजा लगा लें, अगर रेलवे दिवालिया हो जाएगी तो जी। ये अपने कपड़े बेचने आया था, पता चला कि 3 जो बड़े एयरपोर्ट है वो बेचने लगे हैं। ये वो तो आपका मुल्क बेच देंगे जी, ये तो आपका मुल्क भी बेच देंगे। ये तो ऐसे लोग हैं, जरदारी जैसा करप्ट और बेईमान आदमी और लानती आदमी, ये मुल्ला जो असल में टेररिस्ट है, इन्होंने उसको साथ बुलाया हुआ है, को टेररिज्म करवा रहा है, फौजियों को रोज मरवा रहा है, रोज फौजी मरते हैं पाकिस्तान के। कौन मरवा रहा है? ये मुल्ला फजलू, इसको किसी ने नहीं पकड़ा। इसके पीछे सारे टेररिस्ट हैं जो इसने फौज बनाई हुई है, और इसने मुल्ला कुछ मिलाए हुए हैं जो जिनका काम है टेररिज्म करना और डराना, कौम को डराना, फौज को डराना, अवाम को डराना, पुलिस को डराना, अदारों को डराना, ये मुल्ला कर रहा है। और ये जो लौरी है, ये तो कातिल हैं, आपके सामने अभी अखबारों में आ गया है, दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं कि इन्होंने कितने बंदे कत्ल करवाए और कितने जो छुपे हुए हैं, गरीबों को किस तरह मरवाते थे। ये सब चीजें मुबारक साहब जिस मुल्क में हो रही हूँ, आप क्या कह सकते हैं वो मुल्क चलेगा जिसके पास पैसा ही नहीं है? पैसा, एक 4 स्टार जनरल जो भी बना है उसकी इज्जत इन्होंने जमीन में धंसा दी है। विद इन मंथ उसको मिन्नतें तरले करके सऊदीया में भेजा है, पैसे मांगो। वो किस मुंह से पैसे मांगेगा? सऊदी अरब ने कहते हैं कि डिमांड दी है 1 लाख फौज पहले हमें दो, सऊदीया में 1 लाख फौज हमारी बॉर्डरें, तुम्हारी फौज उधर यमन में आगे पीछे लड़ेगी और बाकी पैसे हम देंगे। लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी है, पहले फौज दो, नंबर 2 इलेक्शन कराओ, एक जो हुकूमत पॉलिटिकली पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है वो आए, वो हुकूमत जब आ जाएगी तो हम तुम्हें पैसे देंगे, वरना पैसे नहीं देंगे। आज का और मसला बड़ा अहम है कि इमरान खान को जहर देने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये खतरनाक इरादे जो इनके बने हुए हैं, इमरान खान को नुकसान ही ना पहुंच जाए? बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था। ये मुबारक साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कल जब ये लोग घर में बुला के खाना खा के जहर देते हैं, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 4 स्टार जनरल जो कि मार्शल लॉ लगाने वाला था, क्योंकि ये
MQ के ऊपर वो एक्शन लेना चाहता था। कराची में रोज कत्ल 15, 20, 40, 100 हो रहा था। उसने कहा हम मार्शल लॉ का वहां लगाते हैं, फौज उसके ऊपर एक्शन लेगी। इन्होंने खाना खिलाया उसको और जहर दे के मरवा दिया। 2 महीने बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। उसकी बीवी आज भी कहती है वो बहुत सेहतमंद जनरल था, उसको कैसे हार्ट अटैक हुआ। और इसके बाद जितने लोग हार्ट अटैक से मरे वो सब लोग इन्हीं की गिरफ्त में आए हुए थे। घर बनाया, खाना खिलाया, 2 महीने बाद बंदा हार्ट अटैक हो गया। तो ये इमरान को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इमरान को जहर दे सकते हैं, और भी लोगों को ये जहर दे सकते हैं। ये कातिल है, इनको सजाए मौत। मुशर्रफ ने गद्दारी की थी मुल्क से। अगर इन दोनों भाइयों को जो सजाए मौत इनको हुई थी अगर दे देता तो पाकिस्तान 50% महफूज हो जाता। आज ये लोगों को जहर दे दे के मार रहे हैं। और पाकिस्तान ये मुशर्रफ ने हुकूमत के लिए इनको छोड़ा था, इनको NRO दिया, फिर अभी इन्होंने खुद NRO ले लिया बाजवे के थ्रू। तो ये पाकिस्तान के साथ जो खरवाड़ा हो रहा है मुबारक साहब, किसी मुल्क के साथ नहीं होता ऐसे। ये तो किसी गांव में भी हो तो वो गांव भी कंगाल हो जाए। ये तो मुल्क है इतना बड़ा, और इसके तमाम अदारे तमाशा देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो फिर तो आप अल्लाह ही हाफिज है जिसको कहते हैं। अच्छा ये बताइए, मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि ये कहीं परवेज़ इलाही एंड कंपनी को इस्तेमाल ना करे इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ लोग हैं। और आपके इल्म में है कि जो भी मलबा गिर रहा है इस वक्त कमर जावेद बाजवा पे गिर रहा है, और कमर जावेद बाजवा अभी भी परवेज़ इलाही के राब्ते में है। बिल्कुल होगा। परवेज इलाही जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ये वो लोग हैं मुबारक साहब कि ये जितनी भी हुकूमतें आई ये उसके अंदर होते थे। ये वो इतने मुनाफिक लोग हैं, ये हर बंदे के साथ जाते हैं, फायदा उठाते हैं, फिर उसकी आंखें फेर लेते हैं, अपनी आंखें फेरते हैं फिर। तो ये आपकी बात, ये आपकी तशवीश मेरी भी तशवीश है कि ये किसी भी तरीके से जो इमरान है उसको किसी के ऊपर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने नौकरों के ऊपर भी ना करे, और होशियारी के साथ, बहुत होशियारी के साथ बच के निकले इस सिचुएशन से जब तक इलेक्शन नहीं होते, इसकी हुकूमत नहीं आती, वरना उसको ये मरवा देंगे। अच्छा मुझे अभी ख्याल आया, एक वजीर खारजा थे अमेरिका के, मेरे ज़हन से अब नाम निकल गया है, पता नहीं दूसरे भी ऐसे करते हो। वो पाकिस्तान जब गए तो अपना खाना शाना साथ लेके गए थे, वहाँ का पानी भी नहीं उन्होंने पिया था। मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। वजह ये है कि कोई इन पे इत्मीनाद नहीं करता। तो इमरान खान को भी ये सोचना पड़ेगा और बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। ना परवेज़ इलाही के से वो इससे कोई अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ है, जिस तरह अभी आपने कहा कि ये हर तरफ खेलते हैं परवेज़ इलाही एंड कंपनी ना, और अपने मफादात के लिए। अब गुजरात का DPO है, उसने ये सारा कुछ किया है। ये पहले फिल्म बनी हुई थी कि हम ऐसे करेंगे, फिर उसका बयान जारी करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वरना अगर कोई हमला करे तो वो पुलिस के हाथ आ जाए तो पुलिस मार देती है ऐसे लोगों को ना, जिस तरह इमरान खान पे हमला हुआ। मगर उन्होंने एक ड्रामा करना था और वो ड्रामा लिखा गया है बकायदा तौर पे। आप क्या समझते हैं कि मोबाइल फोन नहीं दिए जा रहे, DPO शामिल नहीं होगा, इन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, और उसमें परवेज़ इलाही भी शामिल हो सकता है। गुजरात तो इसका एरिया है। आप हैरान होंगे कि इसमें कुछ बंदों ने अलग ऐलान बोला है कि ये परवेज़ इलाही इमरान को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस था। चूंकि परवेज़ इलाही बाजवे का आदमी था और बाजवे ने सारा ये खेल खिलवाया था और नवाज शरीफ ने खिलवाया था। नवाज शरीफ का तो अलग ऐलान अल्फाज हैं जो उसके अपने बंदे थे कि इसको कत्ल करो, एक को कत्ल किया दूसरे को भी कत्ल करो। और उसमें गुजरात जगह चुनी गई, और गुजरात चूंकि पंजाब की हुकूमत थी और फिर इनकी हुकूमत है, चौधरी जो है वहां बैठे हुए हैं। तो ये एक बंदे ने तो अलग टीवी के ऊपर बोला कि मुझे 100% शक है कि ये इसमें ये बंदा भी इन्वॉल्व है और ये इमरान का वफादार नहीं है। इमरान को बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा ये भी आप सोच सकते हैं कि ये 10 सीटें जो जितवाई जाती है धांधली शांधली करवा के, यही मकसद होता है कि इनको अंदर लाओ और ब्लैकमेल करके बेड़ा गर्क करते रहो सबका। ऐसे ही है। आप देखें इमरान ने खुद बोला लाइव टीवी के इंटरव्यू में कि बाजवा जो है उसने उसको कॉल आई और उसको बोला कि ये जो सियालकोट वाला शेख है या क्या नाम है उसका, वो जो वजीर दफा है, तो उसने उसको कॉल किया कि मैं तो हार गया हूं अपनी सीट के। उसने कहा मत घबराओ, अभी सब ठीक हो जाएगा।
तो कहते हैं उसको रात को जितवा दिया। तो जब ये चीज एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर सकता है तो 10 सीटें भी इसीलिए रखते हैं ना गैप, उसमें एक होल रखते हैं कि ताकि ये होल जब तक हमारे बंदों का नहीं भरा जाएगा, हमारे बंदे अंदर नहीं होंगे, वो हुकूमत नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह पंजाब में, सेंट्रल में, हर जगह इन्होंने होल रखे हुए हैं, और वो होल जो है वो इनके अपने बंदे होते हैं। जब तक वो बीच में नहीं आएंगे हुकूमत नहीं बनेगी। जब वो बीच में आ जाएंगे फिर सारी सिक्योरिटी आगे पीछे, लेन देन, ब्लैकमेलिंग, सब वो करवाते हैं जो आज तक हो रहा है। सर एक बड़ा अहम मसला इस वक्त है कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो बताया तो ये जाता है कि सुबह कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मगर अभी तक कोई खेल जो नजर नहीं आ रही। जो कुरान में लिखा, मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही वहां में। आपको आ रही? ये सही बात है, ये सही बात है मुबारक साहब। अब असल में ये है कि पाकिस्तान इतना गंदा हो गया है, पाकिस्तान की यानी मामलात, जो पाकिस्तान के हालात है इतने गंदे हैं कि ये बंदा आके खुद भी परेशान हुआ होगा कि ये हो क्या रहा था इस पाकिस्तान में। पता तो था इनको, लेफ्टिनेंट जनरल था, कोर कमांडर था, ये डीएमआई भी था, ये डीजीएसआई भी था, ये सब कुछ इसको पता है। लेकिन बात यह है कि मुल्क, जब वो कहते हैं ना एक गांव का आदमी शहर में जाता है तो वो परेशान होता है, ये कितना बड़ा शहर है, शहर से फिर किसी बड़े शहर में, उससे बड़े शहर में, जब बाहर जाता है दुनिया को, नई दुनिया उसको लगती है। तो ये वही हिसाब है, छोटे रैंक से बड़े, बड़े रैंक से बड़े रैंक में जब आदमी आता है तो उसको समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अभी बात यह है कि इस बंदे ने इसने तो कह दिया अल्फाज में कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बुरे हालात से गुजर रहा है, खतरनाक हालात से गुजर रहा है। ये वो कहते हैं अक्लमंद का इशारा होता है, जो समझते लोग समझ गए थे कि उसने क्यों बोला ये। और फिर सऊदी अरब गया, वहां से लोगों से पैसे मांग रहा है, दुबई में जाएगा लोगों से पैसे मांग रहा है। ये तो चले आपने बताया, मगर क्रूज है। हाँ जी, ये बताइए कि वो जैसे बैठा हुआ है बेचारा वहां पे जाके, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो मांगने वाली कौमें होती है उनके सर तो शर्म से वैसे ही झुके रहते हैं, क्या ख्याल है? ऐसी बात मैं कर रहा हूँ ना, उस बेचारे की इज्जत इन्होंने जमीन में मिला दी है, क्योंकि इन गुंडों को तो कोई पैसा नहीं देता। ये गुंडे हैं, कातिल है। देखो ना, वो आपका मूछों वाला 20 कत्ल करके बैठा हुआ है, उसको मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया हुआ है। ये खरबुर में खाने वाले, इसका भाई कत्ल करवाने वाला चीफ वजीर आजम बना हुआ है। और मुल्ला टेररिस्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्ला फजलू है, जो आज उसको इन्होंने उसकी मर्जी के बगैर ये नहीं चल रही है, वो इनको चला रहा है। तो जो जरा सी बात खतरे में ना हो तो टेररिज्म शुरू हो जाती है। तो ये मुबारक साहब बताएं, इतनी बड़ी फौज, हम कहते हैं 1 मिलियन फौज, एटम बॉम्ब, मिसाइल्स, फ्रांस, डींग, ये वो, और इतनी बड़ी पुलिस, इतने बड़े अदारे, ISI-MI। तो आप मुझे बताएं, एक बंदा जो उसके अंदर बैठा हुआ है, सांप एक बैठा हुआ है सामने, वो तो अज़ा है, उसको नहीं पकड़ सके तो पूरे मुल्क के अंदर कैसे लोगों को पकड़ेंगे? अच्छा, ये सारा कुछ हमारे पास है, हमारे ऊपर फिर भी कोई इतबार नहीं कर रहा। कितनी बदकिस्मती है। इसलिए नहीं कर रहे कि हम, पाकिस्तान कंगाल हो गया है। ये कंगाल की निशानी है ना मुबारक साहब, कि आप लोगों से पैसे मांग मांग के, चाइना, अमेरिका, बर्तानिया, सब लोगों से पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। वो कहते हैं जाओ दफा हो जाओ भाई, हमारे पास कहते हो तुम लोगों को तो हमने $1 बिलियन दिए हैं, अमेरिका ने हमें $1 बिलियन दिए हैं जब से पाकिस्तान बना है। वो किधर गया पैसा? पूरी दुनिया ने पैसा दिया, वो पैसा किधर गया? और जो पाकिस्तान के अंदर पैसा जनरेट हो रहा है, वो पैसा किधर गया? आज पाकिस्तान के बैंक में, वो कहते हैं बैंकों का पैसा $5-6 बिलियन है, बाकी 4-5 बिलियन उधार है। तो मुल्क ऑलरेडी कंगाल हो चुका है। हमने 2 महीने पहले से बोला था मुल्क कंगाल हो गया, और वो वाकई सही है। जो असल लोग हैं वो खुली बात करके कह रहे हैं पाकिस्तान ऑलरेडी कंगाल हो चुका है। इनके पास 2-2, 4-4 दिन, एक हफ्ते का खाने पीने का, पेट्रोल डीजल का माल है। इन्होंने हर चीज बंद की हुई है। तो ये किसी टाइम बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ये लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा। ये आप कह रहे हैं कि वहाँ खजाने में कुछ नहीं, उधर ऑडियो पड़ी हुई है, गंदी वीडियो पड़ी हुई है, काफी कुछ पड़ा हुआ है खजाने में। मेरा वही लोगों को आप देनी शुरू कर दें, यही हो सकता है, और पैसे तो नहीं है। अच्छा, 160 रुपये आटा हो गया जी वहाँ पे, आज की खबर है। और गरीब रो रहा है कि मैं आटा ये कैसे खरीदूं। पहले 140 था, फिर 150, आज 160 की खबर आ रही थी। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है। पंजाब में जितनी आपके इल्म में है फसलें होती हैं, उसके बावजूद आटा नहीं हमारे पास। तो ये हर जगह पे चोरी चल रही है। देखिए ना जी, वो पाकिस्तान के तो वफादार कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के सारे दुश्मन है, चाहे वो सियासतदान है,
चाहे वो बड़े बड़े हजारों के लोग हैं, चाहे वो ये ज़राई जो लोग जिनके पास ज़राअत है, जमीनें, ये बड़ी बड़े ठेकेदार है ना, ये बड़े बड़े क्या कहते हैं इनको, जागीरदार है ना। तो जागीरदार जो है क्या है, चीनी है तो छुपा दो, आटा है तो छुपा दो, गंदम है, वो क्या नाम है, और चीजें खाने पीने की छुपा दो, सब्जियों के रेट आसमान पे ले जाओ, तो फिर पाकिस्तान के लोग भूखे मरेंगे ना। जब भूखे मरेंगे तो कत्ल गारत होगी, इस मुल्क में एक नया एक फितरा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो दुश्मन है आपके, जो दुश्मन अंदर बैठे हैं, यही जो गवर्नमेंट है ये आपकी दुश्मन है। इन्होंने क्या क्या साजिशें की हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, तो बस फिर कुछ भी हादसा हो सकता है। ये हादसा है, मैंने एक अखबार में पढ़ा लिखा कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये हादसा यही हो सकता है जो हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चोरों का टोला आया हुआ है, लोग इन्हें कहते हैं ये चोरों का टोला है, ये आप क्या समझते हैं कि आसानी से जा सकता है, या सबसे पहले पाक फौज को अपने अंदर ऑपरेशन करना चाहिए? सबसे बड़े नुकसानदेह तो ये लोग हैं, तो फौज क्या कर रही है? फौज क्यों नहीं इनके खिलाफ ऑपरेशन करके तो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाती? आप देखें कि फौज में सारी दुनिया तो नहीं, हम कहते हैं ना बड़ी वफादार दुनिया है, वफादार जनरल्स हैं, 2-4 जनरल हमेशा, जैसे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बीवी कहती है मेरे खान को जहर दिया, तो वो भी फौज का बंदा था ना, वो एमक्यूएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था कि ये रोज हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, वहां लोग हजारों दुनिया मार रही है। तो इस नवाज शरीफ चूंकि ये खुद कातिल है, इसने उसको रोक दिया था, तुम कोई मिलिट्री का एक्शन नहीं ले सकते एमक्यूएम के ऊपर। फिर उसने इसको खाना बुला के वहां डिनर शिनर दे के इसको अंदर करवा दिया, इसको सारी जिंदगी के लिए खत्म करा दिया। ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जो आपका एटमी धमाका नहीं करवाना दे रहा था, कहता नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और ये वही बंदा है जो वफादार आपका कहते हैं। ये मुशर्रफ ने जो भी किया था कारगिल में, लेकिन इस बंदे ने उसका, मुशर्रफ का भी और पाकिस्तान आर्मी का मुंह काला करवा दिया। ये वही बंदा है, हर तरफ इस बंदे ने पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की। ये चूंकि इसका बाप तो लोहार था ना, इसका बाप तो लोहा कूटने वाला था, वो मिस्त्री लिखता था, मिस्त्री शरीफ उसका। मैंने एक ऐसी अखबार पढ़ी, उसका टोटका एक जगह लगा हुआ था कि वो अपना नाम रखा था मिस्त्री शरीफ। वो लोहे को एक 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 छोटे से खड़े के ऊपर बैठ के लोहा मारता था और कूटता था गर्म करके। तो ये उसकी औलाद है, ये पाकिस्तान को आज कूट रही है, वो कोई बोल नहीं रहा। क्यों पाकिस्तान आर्मी नहीं बोल रही जब पाकिस्तान तबाह हो रहा है, जब पाकिस्तान खत्म होने के लिए सब कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी क्यों नहीं बोल रही? ये खामोशी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू सर। ये मैं बताऊं अपने देखने वालों को, सर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये कहना चाह रहा हूं कि सर आपको फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे नजर डालनी पड़ेगी। हमें बाहर से तो खतरा है ही है, मगर जो अंदर हालात है सबसे पहले उसका ऑपरेशन करें। ऐसे लोगों को सजाएं दें, मौत की सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में सफाई करें, गंदगी आपके इल्म में है, ये नहीं कि आपको नहीं पता कि कितनी गंदगी है पाकिस्तान में। आपको सबको पता है कौन लोग गंदे हैं, इनको सजाए मौत हो। सफाई करें पाकिस्तान की। आज जिस तरह कमर जवेद बाजवा को लोग जिल्लत और रसवाई के साथ याद कर रहे हैं, अगर आप अच्छे काम कर जाएंगे तो आप पाकिस्तान के हीरो बन जाएंगे। पाकिस्तान की कौम हमेशा आपको इज्जत देगी, आपको अपनी दुआओं में याद रखेगी। ये फैसला अब आपने करना। दोनों रास्ते आपके सामने। कमर जवेद बाजवा ने जो किया वो भी सामने, जो आज हो रहा है उसको ठीक कैसे करना ये भी आपके सामने। सब कुछ हम बताते रहते हैं मीडिया पे, हर चीज आपके सामने। आपको पता है कि किस मकसद के लिए ये चोरों का टोला आया था, कितने जुल्म हुए पाकिस्तान। अगर आप इल्म में है तो फिर मेरा ख्याल है कि जिसको पता हो वो भी गुनाहगार होता है। तो बेहतर है कि अभी से ये काम शुरू करें, देर ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।